Dear students, have you think what is the common between Amazon, Zomato, Netflix? It's cloud strategy. Netflix streams movies, Zomato handles order, Amazon display market on Google Drive storage data, all using cloud computing. Yes, instead of owning servers. That is a common. Yes, today we are going to understand cloud computing. Have you think from HR to marketing, cloud is everywhere. Yes, for managers, for HR manager, for marketing managers, cloud means lower cost, faster decisions, easy scaling and global reach. Hello everyone, I am Dr. Mala Sharma. Welcome to the channel Wisdom Root. If you want to understand business technology and management concept in a simple and practical way, you are in the right place. On this channel, we break down complex topics into easy explanation using real life examples so learning becomes simple and enjoyable. In today's video, we will talk about cloud computing, what it is, how it works, and why companies like Amazon, Google, and Flipkart rely on it. Watch till the end to get the complete clarity. Let's understand the cloud computing. Cloud computing means using computing services like storage, software, processing power through the internet. Instead of maintaining your own computer or server, you pay only for what you use, just like electricity or mobile data. आइए इसको समझते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल मीनिंग है यहाँ पर कंपनीज इंटरनेट के थ्रू डेटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटिंग पावर यूज करती हैं. Instead of purchasing expensive server, companies pays for this service. It means business अपना काम ऑनलाइन सर्विस पर करते हैं बिना खुद का सर्वर बनाए. Yes, this is cloud computing. इसको और रियल एग्जांपल से समझते हैं. It is for the cost management. नॉर्मली कंपनीज को सर्वर खरीदने के लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. बट द क्लाउड कंप्यूटिंग इट इज द टेक्नोलॉजी, यस, जहां पर हम टेक्नोलॉजी रेंट पर लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल यूजिंग गूगल ड्राइव टू स्टोर फाइल्स इंस्टेड ऑफ हैविंग पेन ड्राइव. ये बिल्कुल ऐसा ही है जब आप अपना डेटा गूगल ड्राइव पर स्टोर करते हैं किसी पेन ड्राइव को यूज किए बिना. यूजिंग जीमेल, जूम और माइक्रोसॉफ्ट 365 विदाउट इंस्टॉलिंग हैविंग सॉफ्टवेयर. आपने कभी सोचा कि आपने कभी सिस्टम पे जीमेल इंस्टॉल नहीं किया, जूम आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट 365 आपके सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं है, बट स्टिल इट इज वर्किंग बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन अ क्लाउड कंप्यूटिंग. They are working on a different server. Cloud services are provided from remote data centers, so businesses can increase or reduce resources anytime as per need. This saves cost, time and efforts. मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं. क्लाउड बेस्ड एचआर सॉफ्टवेयर कंपनीज इजीली उस पर काम करती हैं, जैसे कि पेरोल, अटेंडेंस, लीव, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंसेस. इसके लिए हम जोहो यूज करते हैं जो कि क्लाउड पे काम करता है. स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए हम इसके लिए यूज करते हैं एसएपी, दैट इज सक्सेस फैक्टर. लार्ज कंपनी है इसको यूज, बिग कंपनीज इसको यूज करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, एसएपी कंपनी का डिजिटल ब्रेन होता है जिसमें हम प्लानिंग फास्ट होती है और डिसीजन बेटर करते हैं. वी कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर मॉडल, इसमें हम कहीं से भी कहीं पर काम कर सकते हैं. सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस को बनाता है कॉस्ट इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल, स्केलेबल, फ्यूचर रेडी. इसीलिए आज ऑलमोस्ट हर मॉडर्न बिजनेस क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करता है. Yes, this is the importance of cloud computing. Let's understand what we will cover in this lecture today. First, types of cloud computing, evolution of cloud computing, features of cloud computing, components of cloud computing. In this lecture, we will cover these points. Let's understand one by one. Types of cloud computing. Yes, these three are the types of cloud computing. The one is IaaS, Infrastructure as a Service. It means renting servers. इसका मतलब है सर्वर और स्टोरेज रेंट पर लेना. कंपनी खुद का सर्वर नहीं खरीदती है, बस उसको यूज करती है और उसका रेंट देती है. एग्जाम्पल इज AWS virtual machines. Now, understand the second type of cloud computing is PaaS, that is called Platform as a Service. Platforms to develop apps, that is Google App Engine. इसका मतलब है यहाँ पर हम इसको समझते हैं ऐसे, ऐप बनाने के लिए रेडी प्लेटफॉर्म मिल जाना. दैट मीन्स सर्वर और सेटअप की टेंशन नहीं लेना, सिर्फ डेवलपमेंट पर फोकस करना.
Third type is SaaS, that is software as a service, ready to use software, that is Gmail and Salesforce. It means ready-made software directly use करना, जो already बने हुए सॉफ्टवेयर हैं हम उनको यूज करते हैं, इंस्टॉल या मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है बिकॉज वो क्लाउड्स पर अवेलेबल है. सो इट्स अ क्विक रिव्यू. IaaS for the rent server, PaaS for the build app, and SaaS for the use software. Now let's start the evolution of the cloud computing. Let's understand one by one. The one is mainframe computing. Large computers were shared by many users. Examples: banks use one central computer for all branches. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1960s से लेके 1970s की कि कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप होना शुरू हुआ, कैसे उसका विचार आया. इस टाइम पर एक ही बड़ा पावरफुल कंप्यूटर होता था जिसको बहुत सारे लोग मिलकर यूज करते थे. इट वॉज कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटिंग. Suppose there are so many branches everywhere, but the only one cloud server is there for the head of the branch. So every data is storing over there centrally. Come to the second point, that is client server computing. Personal computers client connected to the central server. देखिए हम इमेज में देख सकते हैं क्लाइंट एंड सर्वर का अप्रोच दिया हुआ है. जिस सिस्टम पर हम काम करते हैं इट इज कॉल्ड क्लाइंट एंड ये सर्वर से हमारा कनेक्ट होता है. इसका आइडिया हमें मिला 1980 से 1990 के बीच में. क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता था, सर्वर डेटा प्रोसेस करता था. ये इवोल्यूशन रहा क्लाउड कंप्यूटिंग में. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंटरनेट एंड वेब बेस्ड कंप्यूटिंग. 1990s to 2000 services and data become accessible through the internet. Examples: email services like Yahoo Mail. हम बात कर रहे हैं 1990s की, 1990 से 2000 की. इस टाइम इंटरनेट काफी पॉपुलर हो गया था और सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल होने लगी थी. अब डेटा और सॉफ्टवेयर कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते थे. यस, वो टाइम है जब हम इंटरनेट रन करते थे. इसके रियल एग्जांपल है याहू मेल. यस जी हाँ, जीमेल से पहले याहू मेल काफी पॉपुलर सर्च इंजन रहा है उस टाइम पर. सो दीज आर दी फेजेस कि हमने धीरे धीरे कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ हम बढ़े. सो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू. मेनफ्रेम, वन बिग कंप्यूटर फॉर एवरीवन. Client server, personal computer plus central server, internet based, everything online, anytime access. Let's move to the other points. Virtualization technology, early 2000. One physical server was divided into many virtual servers. इस टेक्नोलॉजी में एक फिजिकल सर्वर को मल्टीपल वर्चुअल सर्वर में डिवाइड कर दिया जाता है. एग्जाम्पल है रनिंग मल्टीपल सिस्टम ऑन अ सिंगल सर्वर. हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं बट वो सब कनेक्ट होते हैं वो सारे सिस्टम एक मेन सर्वर से. दिस इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी. नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 5, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग 2006 onward. यस, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज डिलीवर्ड ओनली ऑन अ पे एज यू गो मॉडल. आप जितना सर्वर का यूज करते हैं आप उतना ही उसका पे करते हैं. इसको रियल एग्जांपल से समझते हैं. AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. So let's take a summary. Virtualization, one server, many virtual system. Cloud computing, servers online, pay only for what you use. So yes, I hope you understood now. Let's move to the features of cloud computing. On-demand self-service. Users can use cloud services whenever needed without asking the provider. इसका मतलब है जब जरूरत हो तो आप क्लाउड सर्विस यूज कर सकते हो बिना किसी की परमिशन लिए या प्रोवाइडर को कॉल किए. Let's understand by the example, creating extra storage on Google Drive instantly. Let's move to the second point, pay as you go. You pay only for what you use. Example, paying monthly for Amazon Web Service based on users. ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग सब यूज करते हैं. तो let's understand. इसका मतलब है जितना यूज उतना ही पेमेंट, ना ज्यादा ना कम, सिर्फ एक्चुअल यूज का पैसा. यस, कंपनी AWS, Amazon वेब सर्विस की हम बात करते हैं, यूज करती हैं. नाउ मूव टू दी स्केलेबिलिटी. रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज्ड और रिड्यूस्ड इजीली. इट मींस रिसोर्सेज को इजीली बढ़ाया या घटाया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट. रियल एग्जांपल्स आर एन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स इंक्रीजिंग सर्वर कैपेसिटी ड्यूरिंग अ सेल. जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो सेल अनाउंस करती हैं. जब सेल अनाउंस करती हैं तो ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है वेबसाइट पर, तो वो उस टाइम पर उसका पे एक्स्ट्रा करती हैं. सर्वर का एक्स्ट्रा यूज हो रहा होता है और उसके बाद वो उसको रिड्यूस कर देती हैं. दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सेसिबिलिटी, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. सर्विसेज कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट. क्लाउड सर्विस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं आप. Real examples are the accessing email from mobile, laptop or tablet. Yeah, the fifth point is resource sharing. It is called multi-tenancy. Multiple users share the same cloud resources securely. Yes, of course,
At a one time, multiple user can use the cloud computing services. For example, many companies using the same cloud server without seeing each other's data. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग में रहते हैं और वहां पे सब लोगों के अलग अलग फ्लैट्स हैं. This is like that. Let's move to the sixth point, that is high availability and reliability. Cloud services rarely go down because data is backed up. क्योंकि डेटा मल्टीपल जगह पर बैकअप होता है डेटा का, तो आपका जो डेटा है वो कहीं पे भी लॉस होने का डर नहीं होता है. सिस्टम रिलायबल रहता है. रियल एग्जांपल्स हैं, गूगल ड्राइव फाइल्स रिमेन सेफ इवन इफ योर लैपटॉप क्रैशेस. Next point, that is automatic update and maintenance. Cloud provides handle software update and maintenance. यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी बात फीचर की आती है कि यहाँ पे जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनका अपडेट एंड मेंटेनेंस क्लाउड कंपनी खुद करती है. वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. फॉर एग्जाम्पल, Gmail updating automatically without user action. This is a very big advantage here. I hope you understood the features of cloud computing. Let's move to the component of cloud computing. This is a different topic of cloud computing. The one is client, front end. The device or application used to access the cloud. Example है laptop, smartphone, web browser, mobile app. This is called client front end. And the second component is internet network. It connects the user to cloud services. इंटरनेट या नेटवर्क क्लाइंट को क्लाउड से कनेक्ट करता है. बिना इंटरनेट क्लाउड काम ही नहीं करेगा. यस, ऑफ कोर्स, विदाउट इंटरनेट देयर इज नो क्लाउड. एग्जांपल, वाईफाई और मोबाइल डेटा यूज्ड टू एक्सेस गूगल ड्राइव. वाईफाई या मोबाइल डेटा ऑन करते हैं तभी हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस रिसीव होते हैं, मेल्स रिसीव होते हैं. नाउ मूव टू द डेटा सेंटर्स, दैट इज कॉल्ड बैकएंड. लार्ज फैसिलिटीज वेयर क्लाउड डेटा एंड एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड. दिस इज द बैकएंड. अब हम जो भी काम गूगल ड्राइव पर करते हैं वो बैकएंड पे जाके स्टोर होता है और हम उसको एनी टाइम कहीं से भी फैच कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स, गूगल और Amazon डेटा सेंटर्स स्टोरिंग मिलियंस ऑफ फाइल्स. एंड द फोर्थ इज सर्वर्स, पावरफुल कंप्यूटर दैट प्रोसेस यूजर्स रिक्वेस्ट. सर्वर्स आर दी पावरफुल कंप्यूटर जो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं. रियल एग्जाम्पल्स आर नेटफ्लिक्स पर मूवी प्ले करते हो बट द ऑल मूवीज आर ऑन द क्लाउड सर्वर. इसके सिंपल फ्लो को समझते हैं. क्लाइंट इज मोबाइल लैपटॉप, वहां हमने इंटरनेट कनेक्ट किया. डेटा सेंटर पे इंटरनेट कनेक्ट हुआ, वहां से सर्वर ने रिस्पॉन्स किया. हम नेटफ्लिक्स के एग्जांपल को अगर समझते हैं तो वहां से वीडियो, फाइल या ईमेल आपके सिस्टम पर डिस्प्ले हुआ. सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द फ्लो ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ स्टोरेज सिस्टम used to store data securely in the cloud. Storage system का काम, it's very simple, everybody understand. Storage system का काम होता है डेटा को क्लाउड में सेफली स्टोर करना ताकि वो कहीं से भी एक्सेस हो सके. एग्जाम्पल है क्लाउड स्टोरेज लाइक ड्रॉपबॉक्स और OneDrive. Point number 6, cloud service model. Types of services offered to the users: IaaS, virtual server; PaaS, app development platform like Google App Engine; SaaS, ready software like Gmail, Zoom. Now come to the seventh point, that is management and security layer. Controls uses, access, billing and data security. ये layer cloud को control और secure करती है. Example, login authentications, firewalls, data encryptions. Login authentication is your Gmail username and password. डिफरेंट कंपनी डिफरेंट फायरवॉल्स यूज करते हैं अपनी कंपनीज के लिए. डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा इंक्रिप्शन यूज होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मस्ट नो स्किल फॉर फ्यूचर मैनेजर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. I hope you understood the points today we discussed about the cloud computing. Follow wisdom roots for smart learning.